Now, very important topic we are going to cover here, which is talking about the constitutional positions of president and governor. Now, understand this. Why is it so important? Because you've read a lot many articles related to the powers and other things related to president. You have also seen with respect to governor. But the point is that what are the distinctions that the constitution gives with respect to the president and governor? And because we follow a parliamentary government, wherein we have two kinds of executive, nominal and a real, how does it matter in this particular case? Now, firstly, let's just begin by going back to what we have done long ago, which was about the parliamentary system. We'll not do that in detail, just a briefing for the introduction here so that you understand about the related articles, because those articles are what we are going to cover here. So अगर हम इंट्रोडक्शन में समझने की कोशिश करेंगे, so we know that we have parliamentary system in India, which is provided by the Constitution of India itself, and this system exists both at the center and the state. And when we have a parliamentary system, what does it imply? That we will have a nominal head at both center and state, and we will have a real head or executive at both center and state. So for us, our nominal head is president and governor, and for our real head is the basically it is council of ministers only, which is headed by PM and CM. So I'm just writing PM CM, but actually it is council of ministers. This much I hope you understand. Now, because we have this system functioning, that we have a nominal and a real head or executive, so it was decided that the president or the governor will have to exercise. Understand why does this topic come into existence? Will have to exercise the power and functions with aid and advice. Details of this topic we'll do in the next topics when we'll cover PM and CM, but ये अभी समझना इसलिए ज़रूरी है so that we appreciate the discretions of president and governor, both the constitutional discretion and the situational discretion. So aid and advice of the council of ministers headed by PM and CM, and that is why the basics of parliamentary system was to be understood. That was very very important. अब ये जब हो गया तो हमें क्या समझना है कि देर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पर प्रेसिडेंट का पावर एंड गवर्नर का पावर डिफरेंस हो जाएगा. अब हम पहले तो देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं क्या विथ रिस्पेक्ट टू दियर पावर, और उसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. अब हम वो देखते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के केस में 3 आर्टिकल्स विल हैव टू सी. यहाँ पे आर्टिकल 53, उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में आर्टिकल 154, यहाँ आर्टिकल 74, उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में आर्टिकल 163, यहाँ पे आर्टिकल 75, उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में आर्टिकल 164. आर्टिकल 53 विच वी हैव सीन अर्लियर बिकॉज वी हैव कवर्ड दैट पार्ट, जहाँ ये क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट यूनियन किसके पास होगा? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास. आई होप यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डन दिस. सी दिस, that the executive power of the union will be vested in the president, and the president will directly either exercise that power or do it through any officer subordinate to him in accordance with the constitution. Similar is happening in this about the executive power of the state. So I'll not keep showing the article again because we have already done this. So I'll just briefly mention here so that it is in reference to what we have to do, that the executive पावर ऑफ यूनियन किसके पास है? प्रेसिडेंट के. और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट किसके पास है? गवर्नर के. राइट? एंड हु विल एक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऑल ऑफ दैट इज गिवन. आर्टिकल 74 वी हैव नॉट डन yet, but 74 and 75 forms the base of the parliamentary system, especially this one and this one for the states. अब ये क्या, और ये हम डिटेल में जैसा मैंने बोला हम आगे करेंगे, बट अभी के लिए विल जस्ट ब्रीफली सी सो दैट वी हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज़ गिविंग. 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, राइट? और 75 कहता है व्हाट आर द अदर प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द मिनिस्टर, वेयर इट इज़ टॉकिंग बेसिकली अबाउट द
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको हम एज एन आर्टिकल आगे देखेंगे। बेसिकली इट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है, विच इज़ अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यू नो अबाउट इट, राइट। तो 74 and 75 हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, और गवर्नर के केस में इट वॉज 163 and 164, बट द सेम थिंग, लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर एंड अदर प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्टर, जहाँ पे कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी इन्होंने जो है बात करी है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो हम सिर्फ अपने अभी शॉर्ट में इस टॉपिक के समझने के लिए वॉट एवर इज नीडेड हियर विल डू इट हियर, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड यहाँ पे एड एडवाइस हूँ द गवर्नर, डेफिनेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल ओनली डू इट, एंड यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू लोकसभा, एंड यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप दीज आर क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। अब आपको यहाँ पे तो सिमिलैरिटी दिख रही है इन द प्रोविजंस, बट हियर इज़ अ डिफरेंस इन द you would say the position or the power or the the position they have got। अब यहाँ पर ये डिफरेंस कैसे है? फर्स्टली ये जो पॉइंट है ना एड एंड एडवाइस वाला, क्या हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। सो लेट्स डू इट दिस वे, विल राइट अ क्वेश्चन एंड सो दैट फर्स्टली यू हैव सीन दिस डिस्टिंक्शन, नाउ विल राइट अ क्वेश्चन एंड विल सी दैट हाउ इज the constitutional position of governor different from that of president. Two major pointers that you will cover here. First, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस की, दिस एंटायर थिंग, इसमें क्या है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको एड एंड एडवाइस करना है, ठीक है, टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, करना तो दोनों में है, दैट इज़ फिक्स्ड, बट प्रेसिडेंट के केस में दैट एडवाइस इज बाइंडिंग एंड दिस हैपेंड आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑनवर्ड्स। दिस एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बट गवर्नर के लिए नो सच प्रोविजन, विच मीन्स एड एंड एडवाइस तो होगा क्योंकि दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट द गवर्नर वुड लाइक टू यूज दैट और नॉट इज नॉट, देयर इज नो बाइंडिंग पावर ऑन द गवर्नर, बट इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो डिफरेंस दिया हुआ है कि इफ़ दे आर टेलिंग कि एड एंड एडवाइस, उसके साथ में भी एक्सेप्शन है। व्हाट इज़ दैट एक्सेप्शन? दैट the constitution itself has written, and I'll just show you also those two articles again so that you understand this difference. Discretionary power मतलब wherein the person can act as per discretion, अपने मर्जी से, अपने डिसीजन से। डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास में नहीं है, गवर्नर के पास में है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और तभी आपको समझ में आ रहा है, इफ़ डिस्क्रिशनरी पावर इज़ नॉट देयर देन ओनली द एड एंड एडवाइस इज़ बाइंडिंग, बट गवर्नर के पास में देयर इज़ नो बाइंडिंग प्रोविजन बिकॉज द गवर्नर इज़ हैविंग द डिस्क्रिशनरी पावर का पॉसिबिलिटी ऑल्सो। सो नाउ विल हैव टू सी कि ये दिया कहाँ पे हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें समझना होगा। तो अगर हम अब इसको वापस से जाते हैं दिस एड एंड एडवाइस थिंग, तो आप देखिए ये क्या बोला जा रहा है, दैट देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर which will be headed by a chief minister to aid and advise the governor in exercise of his functions, except in so far or under this constitution required to act in discretion। आगे अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसको, हम अगले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर दिया गया है that if there will be any question that the discretion is there or not with respect to governor, then the decision of the governor will only be final in this case। गवर्नर ही डिसाइड करेंगे कि उनको डिस्क्रिशन में एक्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है, एंड दिस विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, और ये भी दिया गया है कि ये जो एडवाइस होगा दिस विल नॉट बी इंक्वायर्ड इन बाय एनी कोर्ट। तो जब ये डिस्क्रिशन वाली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई है
दिस इज वॉट वी हैव जस्ट रिटन, दैट द डिस्क्रिशनरी पावर की पॉसिबिलिटी इज गिवन टू द गवर्नर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं प्रेसिडेंट के केस में क्या बोला जा रहा है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा टू एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल in the exercise of his functions act in accordance with such advice। साफ साफ लिखा गया है कि who shall act, उनको करना ही पड़ेगा। और आप देखो ये चेंज 3rd नंबर का कब आया है, दिस वॉज इंसर्टेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में इस चीज़ को बाइंड कर दिया गया कि उनको मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा, गवर्नर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द 2 distinctions in the constitutional position that you will have to remember। President also has an option, 44th Amendment Act से चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया और ये कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि कोई डिसीजन सही नहीं है, एडवाइस तो लेना ही है, दैट इज़ ओके, और बाइंडिंग भी है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। लेकिन अगर लगे, जैसे ये जो रिकन्सिडरेशन वाला ऑप्शन है, इफ़ यू आर रीडिंग दिस, ये आया 44th अमेंडमेंट एक्ट से, क्योंकि इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार के बाद वाली अगली सरकार ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट द एडवाइस दैट यू आर गिविंग मी आई डू नॉट फाइंड इट सूटेबल, प्लीज़ रिकन्सिडर दिस एडवाइस, ठीक है। जनरली भी बोल सकते हैं और किसी स्पेसिफिक अदरवाइज रीज़न से भी बोल सकते हैं। एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन। मतलब फर्स्ट टाइम इफ़ द Council of Minister is giving advice to the President can ask them to reconsider. But if after reconsideration they send back the same advice, President will have no choice but to accept it. ठीक है, so in other manner you can say कि it is binding only because अगर first नहीं तो second instance में तो उनको मानना ही पड़ेगा। Now this has happened earlier. How did it happen earlier? अगर हम उस reconsideration clause को देखें, reconsideration of advice, ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में जो इनको कहाँ से मिलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलेगा। तो फर्स्ट इंस्टेंस में प्रेसिडेंट कैन आस्क टू रिकन्सिडर। तो हुआ क्या, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, पास्ट की आई वाज टेलिंग, तो 1997 में उस टाइम पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट आप बोलो, उन्होंने प्रेसिडेंट को रेकमेंड करा दैट इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन यूपी, ठीक है। बट प्रेसिडेंट ने बोला that this advice is not something I find feasible, so please reconsider। तो प्रेसिडेंट asked for reconsideration, तो कैबिनेट बाद में मान गई, तो कैबिनेट बाद में agreed to it, reconsidered and said that it's okay, no need for president rule, so cabinet agreed, so there was no president rule in UP। But another year 1998 में what happened, again the cabinet asked the president to impose president rule in Bihar। Again the president said that reconsider this advice, but after some time, after few months, the cabinet returned that advice with the same clauses, like no changes in that, so returned without change or retained the same advice। There was no choice but president rule was imposed in Bihar because second time में president कुछ नहीं कर सकते हैं। I hope that is very very clear to you। So you have understood about this discretionary power now। Now अगर हम बात करें कि ये जो discretion है, जो discretionary power है, ये भी 2 तरीके का है। discretionary power ये 2 तरीके का है, एक है constitutional, एक है situational, like something जो कि सिचुएशन के हिसाब से डील होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सिचुएशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल के केस में हमने देखा दैट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर इज़ नॉट देयर विथ प्रेसिडेंट, इट इज़ ओनली देयर विथ गवर्नर, अभी हमने देख लिया, ठीक है। और सिचुएशनल इज़ देयर विथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जो है गवर्नर का। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास तो है ही नहीं, डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर। सो व्हाट आर दोज सम ऑफ द केसेस वेर इन द गवर्नर कैन गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। इट इज़ गिवन एट different places in the constitution, not at one place,
ठीक है, अलग अलग उसके कॉन्टेक्स्ट में ये दिया हुआ है. फर्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन. ये आपको थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में बताया हुआ था पावर्स में एंड लेजिस्लेटिव पावर्स में. डिटेल्स हम आगे देखेंगे जब हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे. सो इफ़ अ बिल इज़ like passed by the state legislature, so the governor, apart from the other options the governor has, like accepting, rejecting, returning, etc., the governor can also keep or reserve the bill for the consideration of the president. The governor can also recommend the president. So recommendation of president's rule, imposition इन स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है कि नहीं उसका रिकमेंडेशन भी गवर्नर के हाथ में है. वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको वो डिस्क्रिशन दे रही है. देन इफ़ द गवर्नर इज एक्सरसाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर वाला हमने पढ़ा था ना यूटीज़ के केस में. यूटीज़ वी हैव डन, यूनियन टेरिटरीज. सो अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे हैं तो भी एडिशनल चार्ज अगर उनके पास है और वो कोई डिस्क्रिशन में एक्ट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं. ऑल्सो डिटरमाइनिंग अमाउंट पेएबल बाई. इस पॉइंट को आपको भी बहुत परेशान नहीं होना. व्हेन विल डू द 6th शेड्यूल विल सी इन डिटेल. ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. अभी बस आप इस पॉइंट को एक बार जस्ट रीड कर लीजिए सो दैट इट फॉल्स इन दिस कैटेगरी. विल डू इट इन 6th शेड्यूल अगेन. 2 autonomous tribal district councils as royalty for mineral exploration. So अगर इन स्टेट्स में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, इन स्टेट्स में अगर मिनरल एक्सप्लोरेशन हो रही है तो वहाँ की जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं वो क्या हैं, कैसे फंक्शन करता है, एज आई जस्ट सेड विल डू इन द 6th शेड्यूल इन वेरी डिटेल. सो डू नॉट वरी. तो उनको कितना अमाउंट पे करना होगा वो डिसाइड गवर्नर कर सकते हैं. एंड सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ स्टेट के कोई लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से रिलेटेड अगर उनको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो सीएम से मांग सकते हैं. ये पावर भी जो है वो गवर्नर के हाथ में है ऑलरेडी. नेक्स्ट वी विल ट्राई टू सी. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन तो है ही नहीं प्रेसिडेंट के पास, हमने देख लिया. सिचुएशनल डिस्क्रिशन में अगर हम देखेंगे तो सेम है प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में. जो पहले सेम वाले हैं पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम थोड़े से डिफरेंस को देखेंगे. तो व्हाट आर द सिचुएशनल डिस्क्रिशंस? बेसिकली दोज हिडन डिस्क्रिशंस जो कि अचानक किसी इमरजेंसी में आ जाएंगे. और यहाँ पे डेफिनेटली विदाउट COM एडवाइस. आई होप यू अंडरस्टैंड. और यहाँ तो ऑलरेडी ये डिस्क्रिशन है तो इसमें वैसे भी ज़रूरत नहीं है. प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, वन इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ PM और CM. अगर प्रेसिडेंट है तो PM, गवर्नर है तो CM. When no party with clear majority, अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं है इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है. और when PM CM in office dies suddenly and no obvious successor. अब understand this. Why did we say that these are situational? Because some emergency can happen. So COM का एडवाइस लेना तो बाकी केस में ज़रूरी है, पर तब ना जब COM will exist. अब let's say if there is no party with clear majority, तो it will be difficult to form a government. अब वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, वो कैसे मिनिस्टर्स बनते हैं, PM वगैरह, वो हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे. बट देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. तो उस केस में क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट किसका करना है वो डिसाइड कर सकते हैं. उसके अलावा इफ़ द PM और CM इन ऑफिस विल डाई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप कोलैप्स कर जाएगा. उनका कोई, बिकॉज इट इज़ हेडेड बाई PM और CM. तो जब वो हेड ही नहीं रहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई मतलब नहीं है. तो हु विल गिव एडवाइस? तो डेफिनेटली टू एक्ट इन दोज इमरजेंसी सिचुएशंस द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर गेट्स दैट इमरजेंसी पावर
राइट, एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर. उसके अलावा द अदर कंडीशन विच इज़ कॉमन इज dismissal of council of ministers if can't prove confidence. तो अगर जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है ना, तो लोकसभा या असेंबली में इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट एबल टू प्रूव देयर कॉन्फिडेंस दैट वी हैव क्लियर कट मेजॉरिटी, देन दे विल कोलैप्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि उस केस में उनको डिसमिस करने का पावर भी इन्हीं के पास रहेगा. उसके अलावा एक और केस में जहाँ पे डिज़ोल्यूशन की बात होगी, ये टर्म्स हम लेजिस्लेचर में करेंगे, डिज़ोल्व हो जाना, ठीक है. जैसे राज्यसभा तो आपको पता है कि परमानेंट या फिर राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट चेंबर है, वो डिज़ोल्व नहीं होती है. लोकसभा या असेंबली हो सकती है. सो डिज़ोल्यूशन ऑफ लोकसभा या असेंबली इफ़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लॉस्ट मेजॉरिटी. So these are all coming from the kind of political emergencies. I hope you are able to make sense, and therefore these are situational discretions available with president and governor. It is very, very much similar. It's just PM is replaced by CM. That is it, right? And Union Council of Minister by State Council of Minister. But for governor, there is some special case also. Governor के case में, the governor also is supposed to act on discretion, बट उनको यहाँ पर COM का कंसल्ट लेना पड़ता है, बट फाइनल डिसीजन वो अपने हिसाब से लेते हैं. जहाँ पे द गवर्नर गेट्स सर्टेन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. टू डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन. प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन के हिसाब से अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो गवर्नर को बोल रहे हैं. क्यों, आपको समझना होगा, हमने ये चीज़ पहले करा था, that the governor has a dual role given by constitution. One as the constitutional head of states, and another is that center's representative. सेंटर यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव. तो अगर प्रेसिडेंट किसी चीज़ के लिए गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो भी गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन में एक्ट करने का अधिकार है. दिस इज़ डन विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्टेट्स. अगेन यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज we'll do all of these in the special provisions, but I'll just briefly show you कि वो किस तरीके के होते हैं. बट ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके केस में ये स्पेशल चीज़ें होती हैं. महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड कर्नाटका. सो अभी हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि किस तरीके की प्रोविजंस हैं. सो इफ़ यू जस्ट नोटिस हियर, दिस इज़ अगेन टेकन फ्रॉम लक्ष्मीकांत. तो आपको उन स्टेट्स के स्पेसिफिक में दिख जाएगा. लाइक महाराष्ट्र के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर विदर्भा एंड मराठवाड़ा रीजन. गुजरात के लिए अगेन डेवलपमेंट बोर्ड फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन. नागालैंड के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, टिल देयर इज इंटरनल डिस्टर्बेंस इन दीज हिल एरियाज. आसाम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज. मणिपुर अगेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज. सिक्किम पीस एंड एडवांसमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एट्सेट्रा. अरुणाचल लॉ एंड ऑर्डर. कर्नाटका डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद कर्नाटक रीजन. नाउ एज आई जस्ट सेड, वी हैव अ सेपरेट चैप्टर जहाँ पे हम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे. 371 के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे. यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन गिवन टू डिफरेंट स्टेट्स होता है. तो उसमें हम देख लेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, क्योंकि वो हमें स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है. बट जस्ट नो कि गवर्नर के सिचुएशनल डिस्क्रिशन में अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री विच इज 1, 2 and 3, these 3 which are common with president and governor, एक और चीज़ आती है, वो ये भी है. I hope now the constitutional position is very very clear to you. You will have to remember this. बाकी details जब हम ये Prime Minister and Council of Minister करेंगे, so you will understand it. So with this we also end the discussion on the topic of President and Governor comparison. So see you guys in the next video. Take care. Bye bye.